જય શ્રી ગણેશ વાલા ભાઈઓ બહેનો। ટાટા હાયર સેકન્ડરી અને સેકન્ડરી મુખ્ય પરીક્ષા 2026ની તૈયારી કરતા અને ખાસ હિન્દી વિષયવાળા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું ગોળકીયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ભાઈઓ બહેનો, આપણે શિક્ષાશાસ્ત્ર એટલે કે પદ્ધતિશાસ્ત્રના અગાઉ સંક્ષેપને ઉત્તર દીજીએ એ શિક્ષક અંતર્ગત એક વિડીયો છે બનાવેલો અને બધા જ ભાઈઓ બહેનોને ખૂબ પસંદ આવેલો અને ખૂબ જ સારી એવી રિસ્પોન્સ પણ આપેલો। તો એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણા બધા ભાઈઓની કોમેન્ટ પણ હતી, બહેનોની કોમેન્ટ પણ હતી કે ટૂંકા પ્રશ્નો પદ્ધતિશાસ્ત્રમાં જો આવે તો કેવા પૂછાય। તો આજે 2 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર દીજીએ એવા પ્રશ્નોની ચર્ચા છે આપણે આ વિડીયો દ્વારા કરવાની છે। વિડીયો અંત સુધી જોજો અને વિડીયો જોતા સાથે જ ત્યાં લાઇકનું જે બટન છે તેને અવશ્ય તમારી હાજરી પુરાવવી જરૂરી છે। તમે વિડીયો જોતા જુઓ તો ખાલી એક નાની એવી હાથના આંગળીથી છે એ એક લાઇક કરવાની છે, તો જેનાથી તમારી હાજરી પુરાઈ જાય। 1000 વિદ્યાર્થીએ વિડીયો જોયો હોય તેમાંથી 100 લાઇક પણ હોતી નથી। તો મેં તમારા માટે અને ખાસ હિન્દીના વિદ્યાર્થીઓ માટે જો એટલું કાર્ય કર્યું હોય તો તમારી પણ એક ફરજ બને કે આપણે પણ લાઇક કરીએ, કોમેન્ટ કરીએ અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લઈએ। આ આપણે એક નૈતિક ફરજ બને છે, આપણો વ્યવહાર સચવાયો કહેવાય। તો વ્યવહાર છે આ રીતે સાચવજો। આ વિડીયોમાં ઘણી બધી લાઇક છે એ કરજો તમે, જેથી કરીને મને એક જાતનો ઉત્સાહ રહે અને પરીક્ષા ખૂબ નજીક છે, આપણે કોઈ ખોટી વાતો નહીં કરીએ અને આપણો જે મુખ્ય મુદ્દો છે તેના પર છે આપણે હવે આવી જઈએ। કારણ કે ઘણા બધા વિડીયો આપણે યુટ્યુબમાં જોતા હોઈએ છીએ, વાત થોડી કરે અને વાતો ઝાઝી કરે છે। કલાક 2 કે 1.5 કલાકનો વિડીયો હોય એમાંથી માઇન્ડ 50 પ્રશ્નો છે એ લઈ શક્યા હોય, આપણે 10-15 મિનિટનો જ વિડીયો હોય પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે એ સમાવી લેતા હોઈએ છીએ। આ વિડીયો ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે, તમે આ પ્રશ્નો જોશો તો તમને એવું જ લાગશે કે ખરેખર સૌથી શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિશાસ્ત્રનો આ વિડીયો છે। તો આ વિડીયો માટે મેં ઘણી બધી મહેનત કરી છે, તો એ માત્ર તમારા માટે જ છે। તો જોઈએ હવે આપણે હિન્દી પેપર 2ની અંદર પદ્ધતિશાસ્ત્રના 2 અંકવાળા જે પ્રશ્નો હોય છે તેની ચર્ચા। શિક્ષણ પ્રવિધિ એટલે કે ભાષા કી પ્રકૃતિ એવं પ્રકાર્ય, આની અંદર ટૂંકમાં પ્રશ્ન કેવા હોય છે તેની ચર્ચા છે આપણે તમે સમજો એવી ભાષામાં છે કરવાની છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, भाषा क्या है, इसकी परिभाषा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भाषा मनुष्य के विचार, भाव एवं अनुभवों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। यह ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में संचार करता है। ત્યાર પછીની એની કેટલીક વિશેષતા છે। ભાષા अर्जित होती है, भाषा सामाजिक होती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा संचार का प्रमुख साधन है। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, भाषा की प्रकृति का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, भाषा की प्रकृति सामाजिक, परिवर्तनशील, प्रतीकात्मक, सृजनात्मक तथा संप्रेक्षणीय होती है। भाषा समाज के विकास के साथ बदलती रहती है तथा विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है। ત્યારબાદ तीजो प्रश्न है, भाषा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, संप्रेषणात्मक प्रकार्य, अभिव्यक्तात्मक प्रकार्य, ज्ञानात्मक प्रकार्य, सांस्कृतिक प्रकार्य, सामाजिक प्रकार्य અને સૌંદર્યાત્મક પ્રકાર્ય। આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો ટૂંકા ટૂંકા પ્રશ્નો છે જે 2 માર્કની અંદર આવી શકે, ક્યારેક 1 માર્કમાં પણ આવી શકે। मातृभाषा का अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। एनो जवाब है, मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक जन्म के बाद अपने परिवार से स्वाभाविक रूप में सीखता है। उसका महत्व व्यक्ति विकास, भावनात्मक विकास, ज्ञानात्मक सरलता, सांस्कृतिक संरक्षण, आत्मविश्वास का संरक्षण, आत्मविश्वास का विकास। तो आ रीते एनो जवाब से बने। 5मो प्रश्न है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की भाषा, राजभाषा शासन प्रशासन में प्रयुक्त भाषा और संपर्क भाषा ये विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच संचार की भाषा। 6ठो प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। उत्तर, हिंदी का विकास संस्कृत,
प्राकृत, अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी, आधुनिक हिंदी के क्रम में हुआ। आधुनिक हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली पर आधारित है। 7वां प्रश्न, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम विद्यालय एवं शिक्षण के माध्यम से होती है। 8वां प्रश्न, भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भाषा का व्याकरण एवं साहित्य विकसित होता है, जबकि बोली किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती है। 9वां प्रश्न, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। एनो जवाब है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद शुद्ध भाषा का प्रयोग, साहित्यिक रुचि का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास। 10वां प्रश्न, भाषा शिक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, भाषा शिक्षण से संचार कौशल्य, चिंतन शक्ति, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व विकास तथा राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। 11वां प्रश्न, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो एनो उत्तर है परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, बुद्धि, अभ्यास और माध्यम। 12वां प्रश्न, भाषा और संस्कृति का संबंध स्पष्ट कीजिए। आनो उत्तर है भाषा संस्कृति की संवाहक है। भाषा के माध्यम से समाज की परंपराएं, मूल्य, रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित होती है। 13वां प्रश्न है भाषा शिक्षण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आना उत्तर જોઈએ, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, गतिविधि से आधारित शिक्षण, अभ्यास का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। तो आ 13वां प्रश्न હતો। 14वां प्रश्न, हिंदी भाषा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एनो उत्तर है वैज्ञानिक लिपि यानी कि देवनागरी, उच्चारण अनुसार लेखन, समृद्ध शब्द भंडार, सरल व्याकरण અને व्यापक उपयोग। तो आ हिंदी भाषा की विशेषताओं थी। त्यारबाद 15वां प्रश्न, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। एनो उत्तर જોઈએ, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों में सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने की दक्षताओं का विकास करता है। वह उचित शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री तथा गतिविधियों के माध्यम से भाषा को प्रभावी एवं रुचिकर बनाता है। 16वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एनो जवाब चाहिए, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा कौशल्यों का विकास करना, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, शुद्ध भाषा प्रयोग की आदत विकसित करना तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। उसका मुख्य उद्देश्य सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, शुद्ध उच्चारण, शब्द भंडार का विकास, व्याकरण का ज्ञान, साहित्यिक अभिरुचि और रचनात्मक लेख। 17वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एनो उत्तर चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य कक्षा एवं पाठ के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी किसी विषय वस्तु, व्याकरण बिंदु अथवा भाषा कौशल्य में दक्षता प्राप्त करते हैं। 18वां प्रश्न है, भाषा कौशल्य क्या है? चारों भाषा कौशल्य का वर्णन कीजिए। एनो उत्तर है, भाषा 4 भाषा कौशल्य है, श्रवण कौशल्य, वाचन कौशल्य, भाषण कौशल्य और लेखन कौशल्य। इनका संतुलित विकास ही प्रभावी भाषा शिक्षण का आधार है। આપણે સીધા પ્રશ્નો છે જોઈ રહ્યા છીએ, કોઈ વિશે બીજી ચર્ચા મિત્રો આપણે કરી રહ્યા નથી। 19મો પ્રશ્ન છે, श्रवण कौशल्य के विकास के हेतु और उपाय लिखिए। कहानी सुनना, कविता पाठ, ऑडियो सामग्री, प्रश्नोत्तर, समूह चर्चा और भाषण सुनना। त्यारबाद 20मो प्रश्न, वाचन कौशल्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वाचन से शब्द भंडार बढ़ता है, उच्चारण सुधरता है, ज्ञान का विस्तार होता है तथा समझने की क्षमता विकसित होती है। 21वां प्रश्न, लेखन कौशल्य के विकास के उपाय लिखिए। एनो जवाब, नियमित लेखन अभ्यास, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, चित्र वर्णन
और रचनात्मक लेखन। 22वां प्रश्न, भाषा कौशल्य का विकास कैसे किया जा सकता है? तो विद्यार्थी मैंने एनो जवाब જોઈએ। भाषा प्रतियोगिता, वाद विवाद, समूह चर्चा, भूमिका निर्वाह, मौखिक प्रश्नोत्तर અને कहानी कथन आ भाषा कौशल्यना विकासમાં आनाથી થઈ શકે। 23वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, बाल केंद्रित शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण, पुनरावृत्ति અને रुचि एवं प्रेरणा। 24वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? जवाब है, प्रेरणा से विद्यार्थी सक्रिय रहता है और सीखने में रुचि लेते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है तथा शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। 25वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में शिक्षण सामग्री का महत्व लिखिए। आनो जवाब है, शिक्षण सामग्री पाठक को रोचक, स्पष्ट एवं प्रभावी बनाती है। इसमें विद्यार्थी की सहभागिता एवं समझ दोनों बढ़ती है। 26वां प्रश्न, हिंदी शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। तो हिंदी शिक्षक में किन गुणों? तो विषय का गहन ज्ञान, शुद्ध भाषा, प्रभावी व्यक्तित्व, धैर्य, सृजनात्मकता, समय पालन, तकनीकी ज्ञान અને વિદ્યાર્થીઓ કે પ્રતિ સહાનુભૂતિ આ એના લક્ષણો અથવા ગુણો છે। भाषा प्रयोगशाला का महत्व स्पष्ट कीजिए। एनो उत्तर है, भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से उच्चारण, श्रवण, बोलने तथा संप्रेषण का कौशल्य का प्रभावी विकास होता है। 28वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में आईसीटी का महत्व लिखिए। उत्तर, आईसीटी के माध्यम से वीडियो, स्मार्ट बोर्ड, प्रस्तुति, ऑनलाइन परीक्षण तथा डिजिटल सामग्री का उपयोग कर शिक्षण अधिक प्रभावी एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। 29वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में सहशैक्षणिक गतिविधियों का महत्व लिखिए। एनो जवाब है, कविता पाठ, भाषण, नाटक, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी और कहानी लेखन। इनमें भाषा कौशल्य एवं आत्मविश्वास दोनों का विकास होता है। प्रभावी हिंदी शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एनो जवाब है, विद्यार्थी केंद्रित, गतिविधि आधारित, सरल एवं स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण, जीवन उपयोगी, तकनीकी संशोधन का उपयोग, सतत मूल्यांकन और सहभागितापूर्ण शिक्षण। 31वां प्रश्न है, पठन कौशल्य का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। आनो जवाब જોઈએ, पठन कौशल्य का अर्थ लिखित भाषा को पढ़कर उसके अर्थ को समझने की क्षमता है। यह भाषा शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल्य है। महत्व देखते हैं तो ज्ञान में वृद्धि होती है, शब्द भंडार समृद्ध होता है, भाषा की शुद्धता विकसित होती है, कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, आत्माध्ययन की आदत विकसित होती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 32वां प्रश्न है, मौन वाचन एवं स्वस्वर वाचन के अंतर स्पष्ट कीजिए। एनो एक बाजू मौन वाचन है અને एक बाजू से स्वस्वर वाचन, બંનેનો તફાવત જોઈએ આપણે। मन ही मन पढ़ना, मौन वाचन मन ही मन पढ़ना, स्वस्वर वाचन आवाज के साथ पढ़ना। गति अधिक होती है, गति अपेक्षाकृत कम होती है, समझ पर अधिक बल दिया जाता है, उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है और आत्म अध्ययन के लिए उपयोगी, कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी। तो आ रीते मौन वाचन और स्वस्वर वाचन तफावतो जोया। त्यारबाद है, वाचन कौशल्य के विकास के उपाय लिखिए। और नियमित पठन अभ्यास, समाचार पत्र एवं पत्रिका पढ़ना, पुस्तकालय का उपयोग, आदर्श वाचन, कठिन शब्दों का अभ्यास, प्रश्नोत्तर पद्धति और कहानी एवं कविता वाचन। तो आ एना लक्षणों है। लेखन कौशल्य का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। एनो उत्तर જોઈએ, लेखन कौशल्य विचारों को लिखित रूप में स्पष्ट, शुद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता है। इसके महत्व, विचारों की अभिव्यक्ति, रचनात्मकता का विकास, भाषा पर अधिकार, परीक्षा लेखन में दक्षता,
व्यक्तित्व विकास और संप्रेषण क्षमता का विकास। आ एनो जवाबमां आवशे। 35मो प्रश्न है, लेखन कौशल्य के विकास के उपाय लिखिए। तो एनो जवाब જોઈએ। नियमित लेखन अभ्यास, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, चित्र वर्णन, शब्द एवं वाक्य निर्माण, त्रुटि सुधार अभ्यास। त्यारबाद 36मो प्रश्न, श्रुतलेख का महत्व स्पष्ट कीजिए। आनो उत्तर જોઈએ। श्रुतलेख भाषा शिक्षण की एक प्रभावी विधि है। उसका महत्व, शुद्ध वर्तनी का विकास, सुनने की क्षमता में वृद्धि, लेखन गति में सुधार, ध्यान एवं एकाग्रता का विकास और विराम चिन्हों का सही प्रयोग और अंत में भाषा की शुद्धता। 37मो प्रश्न જોઈએ આપણે। भाषा शिक्षण में गृह कार्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। गृह कार्य शा માટે જરૂરી છે? तो गृह कार्य से विद्यार्थी सीखी हुई बातों का अभ्यास करता है। एનું महत्व है, पुनरावृत्ति होती है, आत्माध्ययन की आदत विकसित होती है, लेखन कौशल्य विकसित होता है, जिम्मेदारी की भावना आती है और शिक्षक को प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। 38मो प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का महत्व लिखिए। तेमनो उत्तर જોઈએ। पुस्तकालय विद्यार्थी में पठन संस्कृति विकसित करता है। महत्व देखते हैं। साध्य की आदत, ज्ञान वृद्धि, शब्द भंडार का विकास, साहित्य में रुचि, शोध प्रवृत्ति का विकास और भाषा कौशल्य का विकास। 39मो प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कहानी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो कहानी विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखती है तथा भाषा को सरल एवं रोचक बनाती है। महत्व, कल्पना शक्ति का विकास, नैतिक शिक्षा, भाषा विकास और शब्द भंडार में वृद्धि और सुनने एवं बोलने की क्षमता का विकास। 40वां प्रश्न, कविता शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य पहलू है कविता का रसास्वादन, शुद्ध उच्चारण, भाव ग्रहण क्षमता, सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति का विकास, साहित्य प्रेम और भाषा की अभिव्यक्ति में सुधार। 41वां प्रश्न, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। उत्तर જોઈએ। शुद्ध भाषा प्रयोग, सही वाक्य निर्माण, भाषा की संरचना का ज्ञान, वर्तनी की शुद्धता और भाषा कौशल्य का विकास और प्रभावी संप्रेषण क्षमता। 42वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं व्यवस्थित बनाता है। उसका महत्व, शुद्ध लेखन, शुद्ध बोलना, भाषा पर अधिकार, संप्रेषण क्षमता, परीक्षा में सफलता और आत्मविश्वास का विकास। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે આ વિડિયો દ્વારા 42 પ્રશ્નો જે 2-3 વાક્ય में उत्तर दीजिए એના છે જોયા। પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વના છે એવું આપણે કહી શકીએ। હવે મળીએ આપણે એક નવા વિડીયોમાં। જે પણ આ હવે પછીના જે બાકી છે 43 ક્રમથી એની ચર્ચા છે આપણે કરીએ, કારણ કે વિડીયો ખૂબ લાંબો થઈ જાય છે અને પરીક્ષા નજીક છે એટલે આપણે ટૂંકા વિડીયો દ્વારા છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું। હવે મળી નવા જ વિડીયોમાં।